this body divided into this kingdom Animalia divided into subkingdom Parazoa and Eumetozoa. Parazoa is single celled and Eumetozoa is multicellular organism. Again, this Parazoa, which has cellular level organization, only has single phylum, that is known as Porifera. This Eumetozoa, which is multicellular, is divided into two division. First one is the on the basis of the symmetry. First one is the radial symmetry and second one is the bilateral symmetry. Radial symmetry divided into this radial symmetrical animal has two. First one is the Coelenterata or Nereida and second one is the Ctenophora. And after that, bilateral symmetry divided into three on the basis of the presence of coelom, present or absence, or pseudocoelom. Acoelomate animal, it means there is no coelom present, only single phyla is known as Platyhelminthes, यानी flat worm. Pseudocoelomate only present is round worm, यानी nematoda. Eucoelomate again divided on the basis of the presence of mouth or anus, again divided into two sections. First one is the protostomia or second one is the deuterostomia. Protostomia, it means blastophore forms the mouth and in anus it forms anus. इसमें blastophore mouth बना रहा है, इसमें anus बना रहा है. जिसमें mouth बना रहा है, it again divided into three phyla. फर्स्ट वन इज़ द एनिलिडा, इसमें छुप गया एनिलिड पहला है इसका, सेकंड वन आ गया मॉलस्क एंड थर्ड वन इज़ द आर्थ्रोपोड. मॉलस्क इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम एंड आर्थ्रोपोड इज़ द बिगेस्ट, और इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा इज़ द बिगेस्ट इन आर्थ्रोपोड्स. First one is after that Deuteromycetes again divided into two phyla. First one is the spiny skin organism, that is known as phyla Echinodermata, and chordate, which has a specific rod-like structure, that is known as chordate. If chordate present in again this divided into urochordate, cephalochordate and vertebrates. When what do you mean by vertebrates? Vertebrate it means जब organism में कोई भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर छोटी छोटी कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ नोन एज वर्टिब्रेट्स. यूरो इट मीन्स टेल, जहाँ पर टेल होती है. यूरोकॉर्डेट्स का मतलब होता है जहाँ पर टेल होगी, टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड, दैट इज़ नोन एज यूरोकॉर्डेट. हेमीकॉर्डेट जो हेमीकॉर्डेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट सेफेलोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट इट मीन्स एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर एंड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन. यूरो मीन्स टेल, और लार्वा स्टेज पर, सिर्फ लार्वा स्टेज की टेल रीजन पर ही जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. और वर्टिब्रेट्स में क्या हो जाएगा? वर्टिब्रेट्स सी हियर वर्टिब्रेट्स इन दिस. हाँ, नेक्स्ट वन इज़ द सेफेलोकॉर्डेट. सेफेलोकॉर्डेट एनिमल्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. नोटोकॉर्ड एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड तक प्रेजेंट होती है थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. दीज आर नोन एज द सेफेलोकॉर्डेट. यानी इन दिस सेफेलोकॉर्डेट only has notochord, not vertebrate. When notochord divided into, जब rod like structure जो होता है वो छोटे छोटे divisions में बढ़ जाता है, छोटे छोटे segments में बढ़ जाता है, that is known as vertebrates. It means notochord is present. notochord present है in the embryonic stage. embryonic stage पर notochord present होती है and is replaced by the vertebral column in adult, और ये replace हो जाती है vertebral column में जो adult होते हैं उनमें. ओके, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज दिस vertebrates again divided into two groups. First one is the Agnatha and second one is the Gnathostoma. Agnatha जो है, Agnatha आ जाते हैं जॉ जिसमें जॉ नहीं होते. Agnatha जबड़े जिसमें नहीं होंगे, ऐसे वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. और दूसरा आ जाता है Gnathostomata जिसमें जबड़े होते हैं. ठीक है, जॉ इज़ प्रेजेंट. दिस इज आफ्टर दैट दिस Gnathostomata जॉ प्रेजेंट अगेन डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास फिशीज़, यानी फ़िश वाला ग्रुप आ जाता है जिसमें लोकोमोशन बाय फिन से लोकोमोशन होता है. और इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जिनमें चार पैर होते हैं और वो पेंटाडेक्टाइलिस इट मीन्स लिम्स, हाथ और पैर, लिम्स हैज़ फाइव उंगलियाँ, फिंगर्स होते हैं जिसमें. अगेन दिस टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस. फर्स्ट वन इज़ द एम्फीबिया इट मीन्स एनिमल शो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, यानी दो तरीके की लाइफ देता है, बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इन द वाटर. ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में ये वाटर में चले जाते हैं. और बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रक एंड टेल इज़ प्रेजेंट इन सम
कुछ में, और नेक एब्सेंट होती है ऑलमोस्ट में. 2 pairs of limbs is present in this amphibians. Okay, first one is a mucus gland because it has moist skin, that's why mucus gland is present on the skin. Eyes large and projected, compressed tympanic membrane, एक ईयर के ऊपर tympanic membrane present होती है. हार्ट इसमें 3 chambered होते हैं. And in reptiles also heart has 3 chambered, but exception crocodile has 4 chambered heart. And it is creeping animals, crawling habit is present. That's why it is known as reptiles. In this, body divided into head, neck, trunk and tail. इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, जबकि एम्फीबियंस में बॉडी किस में डिवाइड थी, जिसमें हेड था, ट्रंक था और टेल था. क्या नहीं था इसमें? नेक. इसमें नेक और आ गई है. रेप्टाइल्स में नेक इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है. जो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. टिम्पैना के इसमें ईयर अलग से कुछ बना नहीं होता है स्ट्रक्चर, एम्फीबियंस की तरह ही वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? टिम्पैनम ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ट्रंक बियर्स 2 pairs ऑफ लिम्स, और जो धड़ पर होते हैं 2 तरीके के लिम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इस हार्ट इज़ 3 chambered. इसमें 3 chambered होते, क्या बताया था? एक्सेप्शन क्रोकोडाइल हैज़ 4 chambered हार्ट. एव्स जो होती बर्ड्स कहलाती हैं, शो एरियल मोड ऑफ लाइफ, यानी हवा में उड़ने वाली लाइफ बताती हैं. इट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. रेप्टाइल्स की तरह इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, बट बॉडी कवर्ड बाय फेदर से बॉडी पूरी तरीके से कवर रहती है. इसमें इस ऑर्गेनिज्म में बॉडी कवर रहेगी फेदर से. आफ्टर दैट दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्यू. कुछ ऑस्ट्रिच वगैरह नहीं उड़ पाते हैं. इनके जो जॉज होते हैं इसमें, वो मॉडिफाइड इनटू बीक एंड टीथ इज़ एब्सेंट. टीथ इसमें नहीं होते हैं, और जो जॉ होते हैं वो बीक में मॉडिफाई हो जाते हैं. स्किन ड्राई होती, विदाउट ग्लैंड होती है, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट. ऑयल या प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द टेल. 4 limbs मॉडिफाइड इनटू विंग्स. इनके पंख में बदल जाते हैं, कवर्ड बाय फेदर्स, जो कि विंग्स में बदल जाते हैं, जो कि फेदर्स से कवर रहते हैं. और हिंड लिम्स हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, पर्चिंग, स्विमिंग और रनिंग, जो भी काम कर रहे हैं. एंडोस्केलेटन बोनी होता है, बट इट हैज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोन दैट इज these are known as hollow bones, and these bones are known as pneumatic bones. Digestive tract has 2 additional chambers. इसमें क्रॉप और गिजर्ड भी प्रेजेंट होता है एव्स में. क्रॉप और गिजर्ड जो कि इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. हार्ट हैज़ 4 chambered. इसमें हार्ट 4 chambered. मैमल ऑल्सो हैज़ 4 chambered हार्ट एंड बोथ हैज़ डबल सर्कुलेशन. ओके. एंड होम्योथर्मिक होते हैं दोनों ही, एनिमल्स और एव्स दोनों. मैमल्स, हम ही लोगों से इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए मैमल्स के. इसमें क्या होगा? जो मैमरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट, हैंस एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स कहलाते हैं. मैमरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट. एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी इज़ अ यूनिक फीचर. अभी तक किसी पर बाल नहीं थे और ईयर प्रेजेंट हो गए. एंड अ पिन्ना इज़ प्रेजेंट. जो हम लोग के कान बाहर से दिखते हैं, दैट इज़ नोन एज पिन्ना. एंड डायफ्रम इसमें मस्कुलर पार्टीशन होता है दैट डिवाइड्स द ट्रंक इंटरनली. एक डायफ्रम भी इसमें होता है जो कि छाती वाले पोर्शन यानी थोरैसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट को डिवाइड करता है. एब्डोमिनल कैविटी डिवाइड्स इंटरनली, शरीर के अंदर, नॉट एक्सटर्नली. हार्ट 4 chambered एंड डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट. एंड वार्म ब्लडेड एनिमल, रेस्पायरेशन बाय लंग्स के थ्रू होता है. और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी, यानी शरीर के बाहरी एग और स्पर्म जाएंगे और पानी में वो फर्टिलाइज हो जाते हैं. दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. बट इन मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. एंड विविपेरी, इट मीन्स एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबी, यानी बेबी को बर्थ देते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें आ जाते हैं विच आर ओवीपेरस, जिसमें आ जाता है ऑर्निथो राइसेप्टस. ठीक है, ये ओवीपेरस होते हैं काय, और डकबिल प्लाटिपस भी ऑल्सो होते हैं. बट हैज़ मैमरी ग्लैंड. इसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं.